So we were going through the third chapter of MHRM, that is related to human relations. And as I told you, this chapter is very important because in our old syllabus, this human relation chapter was divided under two modules, part 1 and part 2. So the 50% of the portion or the weightage was given to that particular chapter. Now we are having only one chapter, human relation, but the important is same. Whatever additional questions or extra questions will be there in the paper, that will be from this particular chapter only. So you have to focus more and you have to see that you are understanding the topics. Yesterday, we have understood what is the meaning of human relations and the importance or significance of human relations. Today, we are going to start and learn the topic leadership. As far as the term leader is concerned, leader means a person who is followed by followers. Now here in this picture, you can see that this person who is in red is followed by these people. So he is a leader and they are the followers. And you can see that all these people are following the footprint of this person. Right? That means wherever he goes, they are following him. Right? So they are having trust and belief in him. Wherever he is going, they are following him. So that is the power of a leader. Leader is a person who is influencing others to strive hard, right? Willingly. That is meaning of leader. Now let us understand what meaning we are having in syllabus, and accordingly we have to discuss the types of leaders. The meaning of leadership is given as leadership is the activity of influencing people to strive willingly for group objectives. That means leader is a person who is leading or influencing the followers in such a manner that all these people are striving, that means working very hard, that too willingly. Willingly means as per their own wish. Nobody is forcing them. And they are achieving the group objectives. So it is the leader who is, having the responsibility to bring the team spirit and to bring the group objective. That is leadership, right? That also leadership is nothing, but it is an activity. Now, you just tell me how many of you are having the ability to influence others? Do you feel that you are having the power or the quality to influence others? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी बातों से या आपके बिहेवियर से लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और जैसा आप कहते हो वैसा करने को तैयार हो जाते हैं? कई बार लगता है नहीं, तो कई बार लगता है यस, यू कैन डू दैट. Many times, you are convincing your parents to complete or to fulfill your wish. That is also leadership. अगर आप में ऐसी काबिलियत है कि लोग आपको सुनते हैं और आपको फॉलो करते हैं, then you are a good leader. But if you feel that no, these things are not in you, that means you are not going to get success, because आपको लीडर बनना ही पड़ेगा. आप में वो सारी क्वालिटीज होनी ही चाहिए. Otherwise, nobody will listen to you, and ultimately you will be the follower and follower only. So it should not be like that. You inculcate all these things in you. You have to have communication skill. Communication does not mean you have to command on English or on one particular language. No. Communication skill means how you are speaking to others and whether they are getting convinced by that or not. Then you have to have personality. Personality does not mean your physical looks. Personality means how able you are to convince the others. आप कितने पॉजिटिव वाइब्स देते हो सामने वाले को अपने बिहेवियर से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से, कि लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको मानते हैं. ये होती है पर्सनालिटी. Then you have to have willpower, you have to have confidence, you have to have the quality to guide others, and you have to be very honest and you have to be unbiased. आपको ईमानदार रहना है और अनबायस्ड, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी. क्या ये मेरी कास्ट और मेरे रिलीजन का है तो उसको सपोर्ट करना है, सेकंड पर्सन मेरी कास्ट का नहीं तो मैं इसको क्यों सपोर्ट करूं? ये अगर आप में चीज आ गई, आप कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते, बिकॉज अ लीडर इज अनबायस्ड पर्सन. वो कभी पार्शियलिटी नहीं करता. तो ये सारी खासियतें होनी चाहिए एक अच्छा लीडर बनने के लिए. और आज जब आप कहीं पे भी जॉब करने जाओगे, ऑल दीज थिंग्स विल बी इवैल्यूएटेड. आपके इंटरव्यू के टाइम पर ही ये सारी चीजों को कंफर्म किया जाएगा, वेदर यू विल बी इन अ पोजीशन टू गाइड योर सबऑर्डिनेट्स और नॉट. और सबऑर्डिनेट्स तो छोड़ो, आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके साथ काम करने वाले हैं, आपके सेम लेवल वाले,
वहां पर भी आपकी काबिलियत देखी जाएगी। आप खाली चुपचाप बैठे रहोगे, शांत बैठे रहोगे, nobody is going to entertain you. You have to convince others, you have to have that quality, right? तो वो हो जाता है लीडर. Now let us understand what are the various types of leaders. ये आपने सारी चीजें एसवा में सीखी थी. Once again we are just having a repetition because it is again covered in the syllabus, and then after that we are having the transactional and transformational leader. तो पहला जो टाइप है लीडर का, that is called as autocratic leader. Autocratic leaders are, very orthodox leaders. They are having very old thinking, and at the same time they just want that others should follow them at any cost. राइट? वो कभी भी अपने फॉलोवर के बारे में सोचते नहीं है. जो भी डिसीजन ले लेते हैं चाहते हैं कि हमारे फॉलोवर्स उसको मानना चाहिए. दैट इज ऑटोक्रेटिक. दे नेवर थिंक अबाउट देयर फॉलोवर्स. कंसल्टेटिव लीडर्स आर लिटिल बेटर देन ऑटोक्रेटिक. कंसल्टेटिव लीडर्स एटलीस्ट बिफोर फाइनलाइजिंग द डिसीजन दे आर कंसल्टिंग विद द फॉलोवर्स. ऑटोक्रेटिक तो कंसल्ट भी नहीं करता, डायरेक्टली अपना डिसीजन ले लेते हैं. Whereas consultative leaders, at least they are consulting, but decisions again they are taking by the leader only, not by the followers. Then participative leader. Participative leader means the leader who is, involving followers also in making the decision. If there is any difficult situation where the decision is to be made, the leader alone will not take the decision. He will ask the others that what is your opinion, and then he will go with the majority. If majority are saying that yes, we have to go ahead with this, he will go ahead. If majority are saying no, then he will say no, we cannot go ahead with it. That is called as participative style. तो यहाँ पे धीरे धीरे करके improve हो जाते हैं. Then the another one is laissez-faire style. Laissez-faire style means a very friendly person. ये ऐसे लीडर्स रहते हैं जो आपको काम दे देंगे और टाइम दे देंगे कि ये टाइम तक ये काम हो जाना चाहिए बस, और गाइड करते रहेंगे आपको. बट वो आपको ऐसा ये नहीं करेंगे कि नहीं ऐसा ही करना है और ये लाइन ही फॉलो करना है. वो आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे. एंड दे विल बी लिटिल, दे आर लिटिल फ्री. They are allowing you to express you. That is laissez-faire. थोड़े से friendly type को. Then paternalistic style leader, they are the leaders who are like our parents. हमारे पेरेंट्स कैसे करते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, हमें समझाते हैं. पैटर्नलिस्टिक स्टाइल. दे कंसीडर देयर फॉलोअर्स एज देयर ओन चिल्ड्रन. उनको लगता है कि हमारे खुद की फैमिली है, हमारे खुद के बच्चे हैं, इनको गाइड करना है. अगर गलत कर रहे हैं तो उनको डांटते हैं, सही कर रहे हैं तो फिर उनको रिवॉर्ड भी देते हैं. That is called as paternalistic style leader. Then sociocratic style leader, they are very social. ये सभी के साथ अच्छा रिलेशन बना के चलते हैं. इनको लगता है कि सब एक ही जगह पे हैं, सब हम एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं, सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो सब हम एक ही हैं. दैट इज सोशियोक्रेटिक स्टाइल. तो वो किसी को नाराज नहीं करते हैं, सभी के साथ चलते हैं, सबको अच्छे से समझा के चलते हैं. दैट इज कॉल्ड अ सोशियोक्रेटिक स्टाइल. देन ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल जनरली you will follow or you will find in government departments. Bureaucratic style means they will make you to follow the rules. अगर आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो नाराज हो जाते हैं और फिर एक्शन भी लेते हैं. तो ये ज्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है. फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं. तो बैंक में एक तो रहता है सीनियर मैनेजर, फिर एक रहेगा ब्रांच मैनेजर, then there will be officers, then there will be clerks, then there will be peons. So everyone who's working in the bank, they are having their own responsibilities, they are having their own duties. तो अगर कोई ड्यूटी नहीं करता है तो उसके जो इमीडिएट सुपीरियर है उसको अथॉरिटी है, वो उसकी कंप्लेन कर सकता है. राइट? ऐसा नहीं कि एक जो प्यून है गवर्नमेंट बैंक में काम करता है तो हमेशा ऐसा रहेगा कि मेरी तो सरकारी नौकरी है, मुझे तो कोई नहीं निकाल सकता, जो मर्जी मैं करूं, जब मर्जी मैं आऊंगा, जब मर्जी जाऊंगा. नहीं, ऐसा नहीं कर सकता. उसके लिए कुछ कायदे बनाए गए हैं, जो कायदे उसे पूरे करने ही हैं. तो अगर वो नहीं करता है ठीक से काम, तो उसका इमीडिएटली ऊपर जो पर्सन रहेगा, ही मे बी क्लर्क और ही मे बी द ऑफिसर, वो जो है वो कभी भी उसको कंप्लेन कर सकता है और उसके लिए वो एक्शन भी ले सकता है. Then the next one is neurocratic style. Neurocratic style, these people are very tough. Tough in the sense, even if you are making a small error or small mistake in the report, they will get angry like anything.
They will say that मैंने यहाँ पे कैप्स लॉक में ए बोला था तो तुमने स्मॉल में ए क्यों लिखा, यहाँ पे कॉमा आनी चाहिए तो फुल स्टॉप क्यों लगाए. दे आर वेरी रिजिड. कायदा मतलब कायदा, यही होना ही चाहिए. एंड दे आर, यू नो, दे डोंट केयर अबाउट द फॉलोअर्स. तुम्हारे घर में कुछ भी होने दो, कोई भी सिचुएशन होने दो, तुम्हारे घर में कोई मर गया तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा काम होना चाहिए. That is neurocratic style. And then the last one, which is most popular and which is followed in the modern world, that is situational style. These are very modern leaders. Situational. Depending upon situation, they change the style. Sometimes they become autocratic, sometimes they become consultative, sometimes they become participative, sometimes they may be laissez-faire, sometimes paternalistic. So depending upon the situation, depending upon the type of, you can say the audiences or type of the followers, they change their style. That is called as situational style leaders. So since already you have learned these things in your second year, so I have gone little fast to make you understand, just to make a repetition or revision of this. Now we are proceeding with the topic, that is transactional leader. Transactional. If you divide the word this particular word transactional, you will be getting first word as transact. Transact means work. Work. Now, these are the leaders who will ask you to complete the work at any cost. And if you are not completing the work, they will punish you. And if you are completing the work in a very nice manner, they will reward you. That is called as transactional leader. Still background voice is coming. Is it disturbing you? Because I'm getting some messages in the chat box, some background voices are coming. Over here, I don't think there is much voice. Is it disturbing you? Okay. Okay, I will complete only this slide and I'll continue with the next period. Okay. So transactional leader, as I told you, transactional leader means the leader who are asking you to complete the work. If you are completing the work in a correct manner, they will reward you. आपको इंसेंटिव्स दे देंगे, आपको लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दे देंगे, सबके सामने आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपसे हंस के बात करेंगे. दैट इज ट्रांजैक्शनल लीडर. लेकिन गलती कर दी तो गए काम से. आपको गुस्सा भी करेंगे, आपको मेमो भी इश्यू करेंगे, हो सकता है आपको सस्पेंड कर दें, हो सकता है आपको निकाल भी दें नौकरी से. वो होते हैं ट्रांजैक्शनल लीडर्स. ये कभी भी गाइड नहीं करते. इनका काम है काम निकलवा देना, बस काम करा के लेना है, वो मेरा काम है. वो उनको लगता है कि वो लीडर है. दैट इज ट्रांजैक्शनल लीडर. तो ये मोर और लेस जो हम लोगों ने पहले वाले स्लाइड में टाइप्स ऑफ लीडर्स दिखे थे ना, तो सबसे पहले वाला कौन था? ऑटोक्रेटिक. ये जो लीडर्स हैं ट्रांजैक्शनल लीडर्स, दे आर मोर और लेस ऑटोक्रेटिक स्टाइल लीडर. ये लोग कभी फॉलोवर्स की परवाह नहीं करते, जो भी डिसीजन लेने अपने ले लेते हैं, अपनी चला. इनको क्या लगता है कि मैं बॉस हूं, मुझे इनसे काम करा के लेना है, और एक बार काम हो गया तो क्रेडिट भी खा जाते हैं. ये ऐसे हैं ट्रांजैक्शनल लीडर्स. क्रेडिट आपको नहीं देंगे, क्रेडिट देंगे तो अपने आप को देंगे. हाँ, मॉनेटरी रिवॉर्ड भी दे देते हैं. कभी कभार आपको सिर्फ सबके सामने अप्रिशिएट करेंगे, क्लैप कराएंगे. एक्चुअली इस बार मुझे चांस नहीं मिला था, आपको एक मूवी दिखानी है मुझे, लेकिन वो 2-2.5 घंटे की मूवी है, तो मुझे स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा. एंड यू आल्सो शुड बी अवेलेबल टू सी दैट हाउ द ह्यूमन बीइंग हैज बिकम मशीन्स नाउ. वो एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसे पर्सन की स्टोरी है, हिंदी फिल्म है, जहां पे वो बंदा एक मशीन की तरह बन गया ऑफिस में काम करते करते. वो पूरा उसके ऊपर है, और हम कितने ज्यादा कैप्चर्ड हो गए हैं बॉस के हिसाब से. तो ये ट्रांजैक्शनल लीडर वहां पे अप्लाई होते हैं. तो ये हो जाती है ट्रांजैक्शनल लीडर की मीनिंग. मैंने आपको सिर्फ बैकग्राउंड बताया ना. व्हाट इज द मीनिंग व्हिच इज गिवन इन दिस सिलेबस. Here it is given that transactional leadership is a style of leadership whereby a leader secures compliance of the followers through rewards for good performance and punishments for poor performance. यहाँ पे दिया हुआ है secures compliance. Secures compliance means काम करवा के लेना. Secures means you are scoring something. जो चीज आपको मिल जाती है,
जो चीज आपको मिल गई रिसीव कर लो, सिक्योर्स। कंप्लायंस मीन्स अ कंप्लीट वर्क ऑफ द फॉलोवर्स, जो आपके अंडर काम करते हैं वो फॉलोवर्स हो गए, उनसे आपको काम करा के लेना है। दो तरीकों से। कौन कौन से तरीके हैं? नंबर वन, रिवार्ड्स फॉर गुड परफॉर्मेंस एंड पनिशमेंट्स फॉर पुअर परफॉर्मेंस। तो ये हो जाती है हमारी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की स्टाइल। The transactional style of leadership was first described by Max Weber in 1947 and then further explained by Bernard Bass in 1980. ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है। This particular style was first described by whom? By Max Weber in 1947. And then again in 1980, the same theory was continued by Bernard Bass. And Bernard Bass has explained this theory in a more accurate and in a more correct manner by conducting some research. इन दोनों ने ही रिसर्च किया था और रिसर्च करके ये स्टाइल को डिस्कवर किया था। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। Then after that we have the transactional leaders set goals and expects the followers to achieve the same. Necessary directions and guidance is given to the subordinates to achieve the goals. If the planned goals are achieved, the subordinates are rewarded. Otherwise, the subordinates are criticized and punished. उनको criticize भी करते हैं और उनको सजा भी देते हैं। तो ये हो जाता है ट्रांजैक्शनल स्टाइल लीडरशिप। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल समझ आया। तो अगेन वी आर गोइंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड एंड देयर यू आर टू कंपेयर दैट दिस ट्रांजैक्शनल लीडर कहाँ पे अप्लाई होता है। एक तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ऑटोक्रेटिक में अप्लाई हो जाता है, और कौन कौन से टाइप में अप्लाई होता है आपको ये मैंने आपको समझाया है ना, आपको ये सारे टाइप्स। तो आपको कहाँ पे लगता है कि ट्रांजैक्शनल ये आ जाते हैं, कहाँ पे आते हैं? लाइसेंस फेयर में तो हरगिज नहीं आएंगे, क्योंकि लाइसेंस फेयर ऐसा स्टाइल है जहां पे अगर आपने थोड़ी बहुत गलती कर दी ना तो वो आपको समझाते हैं। यस, न्यूरोक्रेटिक, वन आंसर आई गॉट, न्यूरोक्रेटिक। और एनी अदर? डोंट यू फील ब्यूरोक्रेटिक में भी आ जाते हैं? कायदा बताते हैं ना आपको, बार बार मेमोज दे देंगे, आपको डिमोट कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, तो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में आ जाते हैं। एंड दे आर नॉट कंसल्टेटिव एट ऑल, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिव एट ऑल। लाइसेंस फेयर तो पहले ही बता दिया। पैटर्नलिस्टिक तो हरगिज नहीं, और उनको किसी की पड़ी नहीं है, इसके लिए सोशियोक्रेटिक भी नहीं है, और सिचुएशनल नहीं होते क्योंकि वो एकदम रिजिड रहते हैं। Okay, so these are the three styles which are getting matched with the transactional leaders. Okay, अब एक ऑनेस्टली बात बता दो, जब आप लीडर बनोगे तो किस तरह के लीडर बनना चाहते हो? What type of leader would you like to be from these types? इनमें से कौन सा एक लीडर आप चाहते हो कि आप बनना चाहिए? Okay, नाम सिद्दीकी saying situational. Okay, तो ये तो हो गई आपकी बात कि आप किस तरीके से बनना चाहते हो, लेकिन डायरेक्टली तो लीडर नहीं बनोगे, पहले तो आपको फॉलोअर बनना ही पड़ेगा ऑफिस में। तो बनोगे तो आपको कौन सा लीडर चाहिए? आपका बॉस या आपका सुपीरियर, इनमें से कौन सी स्टाइल का लीडर प्रेफर करोगे? पैटर्नलिस्टिक। ओके, और कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ अनाम रिप्लाई कर रही है। आप जॉब करने जाओगे तो आपको इनमें से कौन सा लीडर चाहिए आपके ऊपर बॉसिंग करने के लिए?
नो आंसर. ओके, आफरीन इज आल्सो सेइंग पैटर्निस्टिक सिचुएशनल. अब अगर मेरी सलाह मानोगे ना, तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप अपने लीडर को लाइसेंस फेयर स्टाइल में कन्वर्ट करो. यस, अमित ने करेक्ट आंसर दे दिया, लाइसेंस फेयर स्टाइल, बिकॉज this is the style of leader which is giving you freedom to, you know, give your own ideas. There is no limit for giving ideas. लाइसेंस फेयर स्टाइल इतने फ्री होते हैं जो आपकी हर गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे. ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे. अगर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी तो पनिश भी दे सकते हैं, कभी कभी कंप्लेन भी करेंगे, थोड़ा कभी डांटेंगे भी, पर वो एक दोस्त की तरह रहते हैं. तो हम जैसे अपने फ्रेंड्स, कोई खास दोस्त रहते, कंफर्टेबल रहते हैं ना, तो कोई गलती कर भी देती तो उसको पहले बताते हैं, इस पर वो समझाता भी है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. नहीं, टू लीनियंट नहीं होते हैं. लाइसेंस फेयर वो अपनी एक मर्यादा में रहते हैं, अपनी एक लिमिट बना के रखते हैं. एक गैप रहता ही है, पर फिर भी आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं. पैटर्नलिस्टिक तो ओवर हो जाते हैं, वो ओवर मतलब पेरेंट्स के जैसे वो करते हैं, वो भी ठीक नहीं है. सोशियोक्रेटिक सभी के साथ सोशल रहते हैं तो फिर वो बायस होते, कभी कभी ना ऐसे हो जाते हैं कि क्या बोलते हैं, डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, मतलब सबको सबको राजी रखना है ना, किसी को नाराज नहीं करना. तो वो भी स्टाइल कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी ये हो जाती है. वो उस तरह के लीडर्स भी नहीं होने चाहिए. लाइसेंस फेयर, पर्सनली स्पीकिंग, आर वेरी गुड लीडर्स. And at the same time, sometimes this bureaucratic also should be there. At least थोड़ा सा डर रहना चाहिए कि मैं मेरी मर्जी नहीं चलाना चाहिए. बट लाइसेंस फेयर इज नंबर वन. तो जब आप कहीं पे जॉब करने जाओ ना, तो देखो कि आपका लीडर कौन सी स्टाइल का है. आप जान जाओगे ये जो आपने सीखे हैं ना यहाँ पे कोर्स में, यही चीजें, इनमें से ही कोई एक आपका लीडर रहेगा. पर आपको ये देखना है कि आपके बिहेवियर से दे आर कन्वर्टिंग टू द लाइसेंस सिस्टम. ये आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे और होंगे भी. वो भले ही ऑटोक्रेटिक स्टाइल लीडर रहेगा ना, तो भी वो लाइसेंस फेयर में चेंज हो जाएगा आपके लिए, इफ यू आर बिहेविंग लाइक दैट. लेकिन जब आप लीडर बनो तो सिचुएशनल ही बनना है, तो सिचुएशनल ही बनना है. ओके, सो विद दिस नोट आई जस्ट स्टॉप टुडेस लेक्चर, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर. वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि एक ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल ये किस तरीके से कौन सी लाइन पे मैच हो जाते हैं, और एक कॉमन मैन के लिए वो किस तरीके का रोल प्ले करते हैं. यस.